Hello everyone. So in 11th Science Biology, we have started the chapter number 9. It is in biomolecules. Okay, so in earlier lectures we have studied about organic, inorganic molecules, how we can analyze organic as well as inorganic molecules. Then on the basis of this analysis, or how these organic and inorganic molecules are classified. Generally, the organic molecules are of two types, that is biomacromolecules as well as biomicromolecules. Okay, so we have completed the biomicromolecules. Why it is known as a micromolecules? Because they are having a smaller size, it is having a smaller density, lower density, and it is also having a simpler structure. They are monomeric in nature. So because of this characteristic, because of this specific characteristic, they are included in the micromolecules. Understood? Now next one. In micromolecules, we have studied about the carbohydrate, that is monosaccharide and oligosaccharide, amino acids, nucleotides as well as lipid. Okay. Now next one, that is the biomacromolecules. As we have studied the difference between a biomicromolecules as well as biomacromolecules. Now you know that what is the characteristic of a macromolecules. Generally, macromolecules are larger in size. They are having complex structure, their molecular weight is also higher, and these macromolecules are generally polymeric in nature. Polymeric in nature. कैसे होते हैं? They are in polymers. What is a polymers? Okay, you know that the micromolecules are generally in monomers. Monomers का मतलब होता है कि single unit. Understood? Single unit है, then we can say a monomer. So here दिस मैक्रोमोलेक्यूल इज एन पॉलीमर. पॉलीमर का मतलब होता है कि एक से ज्यादा मोनोमर्स जो है वो कंबाइन होकर के जो स्ट्रक्चर बनता है, द मॉलिक्यूल बनता है, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ए पॉलीमर. तो यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा जो मोनोमर्स है वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और जो स्ट्रक्चर बना रहा है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए पॉलीमर. Understood? Polymer कोई भी हो सकता है. This polymer is depending on the monomer. कौन सा मोनोमर है पार्टिसिपेट कर रहा है फॉर्म दी पॉलीमर, उसके आधार पर पॉलीमर उसके अलग अलग टाइप्स होंगे. Understood? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 like that so many monomers are joined together by specific bond. Understood? And forming a chain of an polymer. क्या बना देता है? Polymers बना देता है. सपोज यहाँ पर मोनोमर्स है वो क्या है, ग्लूकोज है. सपोज यहाँ पर जो मोनोमर्स है वो क्या है, ग्लूकोज. ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज एक तरह का क्या है, मोनोसैकेराइड. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम एक साइड क्या ले लेते हैं, मोनोमर्स ले लेते हैं और एक साइड क्या ले लेते हैं, पॉलीमर्स. यानी कि ये जो हमारे पॉलीमर्स है, ये जो हमारे बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स है, वो कौन कौन से मोनोमर में से बने. सपोज द मोनोमर इज ए मोनोसैकेराइड. सो एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड अगर एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं तो कौन सा पॉलीमर बनाएगा, इट विल फॉर्म द पॉलीसैकेराइड. It will form the polysaccharide as a polymer. दूसरी अगर बात करें, if the monomer is an amino acid, understood? अगर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और जो पॉलीमर बनाते हैं, this is known as a protein. Understood? Okay. Next one, that is a nucleotides. So if the monomer is a nucleotides, more than one nucleotides joined with each other by means of a specific bond and form the polymer named as a polynucleotide. और इसको हम न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं. इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज एन न्यूक्लिक एसिड. Understood? Okay. So these are the type of monomers which will join with each other by means of a specific bond and form these specific polymers. Understood?
अंडरस्टूड? अलग अलग मोनोमर्स है तो उसके जो पॉलीमर्स है वो भी अलग है. Okay, so here in this biomacromolecule specifically we will study about polysaccharide, protein as well as nucleic acid. ये तीन की हम डिटेल में स्टडी करेंगे. पॉलीसेकेराइड की, मोनोसेकेराइड की स्टडी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली. अमीनो एसिड ऑलरेडी वी हैव स्टडीड as well as nucleotide already we have studied. So we have studied about monomers. Understood? Now the term of a polymer. Polymers कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं? Which bond are participating in the formation of this kind of an polymers? Okay? So now you are clear about the term that is a monomer as well as polymer. अब आपको क्लियर हो गया कि मोनोमर शब्द है वो इसका मतलब क्या होता है, पॉलीमर जो टर्म है उसका मतलब क्या है. ओके, ओके. नाउ जनरली on the basis of a types of monomer which is participating in the formation of polymers, these polymers are of two types. कौन से जो मोनोमर्स वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके आधार पर so polymers they are divided into two types, that is homopolymers as well as heteropolymers. Generally homo and hetero देखिए ये जो वर्ड है ना homo and hetero, तो ये जो homo वर्ड है वो कहाँ पर यूज होता है जब कोई सिमिलर सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, कोई सिमिलरिटी होती है कोई दो सब्जेक्ट के बीच में या तो दो सब्सटेंसेस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं कि होमो. हेटेरो का मतलब होता है कि अलग अलग. अंडरस्टूड? यानी कि होमो मींस सेम, हेटेरो यानी कि अलग अलग. तो यहाँ पर क्या होगा, इन केस ऑफ एन होमो पॉलीमर whatever the monomers are participating for the formation of these polymers, these monomers are often one kind. एक ही तरह का मोनोमर होगा, अलग अलग मोनोमर्स नहीं होंगे. ओके, सो यहाँ पर सेम मोनोमर्स होंगे which is participating in the formation of an homopolymers. Understood? Example ले लेते हैं कि starch is the best example of an homopolymers. We know that the starch is made up of an ग्लूकोज. स्टार्च किससे बना होता है, ग्लूकोज से ही बना होता है, और कोई भी उसमें मोनोमर्स नहीं होते, सिर्फ ग्लूकोज होते हैं. सो कितने सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और क्या बना देता है, स्टार्च बना देता है. लाइकवाइज सेल्यूलोज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन होमोपॉलीमर बिकॉज़ इट आल्सो मेड अप ऑफ एन ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? अनदर एग्जांपल इज एन इन्यूलिन. Inulin is also example of an homopolymers because it is made up of an fructose only. वो सिर्फ के कौन से मोनोमर से बना है, सिर्फ फ्रुक्टोज से ही बना है और कोई इसमें नहीं. अंडरस्टूड? हेटेरोपॉलीमर का मतलब होता है कि here more than one types of monomers are participating in the formation of a polymer. यहाँ पर एक ही तरह का only one type of a monomer. हाँ, only one type of a monomer is participating in the formation of a polymer. This polymer is known as a homopolymer. Here more than one type of a monomers are participating in the formation of a polymer. So this kind of a polymer is known as a heteropolymer. Best example of a heteropolymer is an protein. Okay, we know that in our body 20 types of an amino acids are there. तो ये अलग अलग अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे. अंडरस्टूड? सो मोस्ट ऑफ जो हमारे अंदर प्रोटीन्स होते हैं उसमें एक ही तरह का अमाइनो एसिड नहीं होता, 20 में से कोई भी हो सकता है. अंडरस्टूड? सो 20 में से कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है. सपोज यहाँ पर एलानिन है, ग्लाइसिन है, प्रोटीन है, वैलिन है. तो इस तरह से देखिए अलग अलग अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं और क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है. Understood? So protein is an example of heteropolymer which is made up of 20 different type of amino acids. 20 अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड से हमारे जो प्रोटीन से वो बने हुए होते हैं. ओके, now next one
molecules, we know that generally during an analysis of an organic molecules, क्योंकि ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं bio macromolecules as well as bio macromolecules, both are a type of an organic molecules. Okay, so जब हमने start में analysis of an organic molecules जब पढ़ा था, we know that at the end of an analysis we found two types of two fractions. अंडरस्टूड, अलग अलग दो फ्रैक्शन मिले थे हमें, एक था एसिड सोल्यूबल और दूसरा था एसिड इनसोल्यूबल। अंडरस्टूड, तो जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन था, एसिड सोल्यूबल में जो जो सब्सटेंसेस थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो कौन से थे? बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलेक्यूल बट एक्सेप्ट लिपिड, यहाँ पर लिपिड नहीं था। though the lipid is a biomicromolecule, है तो बायोमाइक्रोमोलेक्यूल, क्योंकि उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका मोलिकुलर वेट है, अंडरस्टूड, वो कोई भी मोनोमर्स से नहीं बना होता है। अंडरस्टूड, आपने देखा होगा कि लिपिड इज जस्ट मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एन अल्कोहल एज वेल एज फैटी एसिड। सिर्फ दो ही चीज से बना है, अलग अलग मोनोमर्स वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और पॉलीमर बनाता है, ऐसा कोई भी ये लिपिड में नहीं होता है। अंडरस्टूड, सो जस्ट लिपिड इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, अल्कोहल एज वेल एज फैटी एसिड। एक तो ये बात हुई, दूसरी कि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है इज लेस देन 10,000 डाल्टन्स, अराउंड 800 डाल्टन्स, उतना ही होता है। अंडरस्टूड, सो द लिपिड इज जनरली कंसीडर्ड एज एन बायोमाइक्रोमोलेक्यूल्स, उसको किस में रखा जाता है? माइक्रोमोलेक्यूल्स में रखा जाता है। बट जब हमारी एनालिसिस होती है तो दो फ्रैक्शंस मिलते हैं, एसिड इनसोल्यूबल एज वेल एज सोल्यूबल। एसिड सोल्यूबल है, उसमें माइक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पर एसिड इनसोल्यूबल जो है उसमें कौन से होंगे? बायो मैक्रोमोलेक्यूल। बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे प्रोटीन, वो भी यहाँ पर होगा, देन न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट as well as lipid। अंडरस्टूड, यहाँ पर लिपिड है वो एक्सेप्शन है, though it is a biomicromolecule, it will you can say it will found in the biomacromolecules, it will found in the acid insoluble। अंडरस्टूड, दो फ्रैक्शंस बनते हैं तो उसमें लिपिड हो माइक्रोमोलेक्यूल हो होता तो है, लेकिन वो इसमें देखने को मिलता है हमें एसिड इनसोल्यूबल फ्रैगमेंट्स में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है व्हिच इज मेड अप ऑफ मोस्टली लिपिड, किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। जब हम उसको ये जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होता है उससे क्या करते हैं कि ग्राइंड करते हैं सेल को, तब क्या होता है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, इट इज ब्रेक डाउन, सेल मेम्ब्रेन इज ब्रेक्स इनटू द वेसिकल्स। क्या बना लेता है? ये वेसिकल्स बना लेता है, and these vesicles cannot filter out through the cotton or cheese cloth, वो फिल्टर नहीं हो सकते हैं और इसलिए ये कहां पर रह जाते हैं? एसिड इनसोल्यूबल यानी कि रिटेंटेंट में रह जाएंगे। अंडरस्टूड, और इसलिए कई बार ये जो लिपिड है उसको बायोमैक्रोमोलेक्यूल में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एसिड इनसोल्यूबल में पाए जाते हैं, इसीलिए अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, वो सब वो किसके जैसे होते हैं? बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। So we can say that this lipid is not a strictly biomacromolecules, वो biomacromolecule नहीं है, understood? But they are found in acid insoluble fraction। ओके, सो कई बार अगर हम सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, माइक्रो नहीं मैक्रो नहीं, सिर्फ अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो जनरली हमारे अंदर चार तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज लिपिड। सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स की बात की है, माइक्रो मैक्रो ऐसा अलग अलग नहीं है। अंडरस्टूड, प्रोटीन उसमें दोनों ही आ जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एज वेल एज पॉलीसैकेराइड सब आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड है जिसमें न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड्स एज वेल एज ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वो सब आ जाएंगे एज वेल एज लिपिड, क्योंकि वो उसके मोनोमर्स भी अलग नहीं है, उसका पॉलीमर भी अलग नहीं है, जो भी है एक ही है, दैट इज ए लिपिड। ओके, सो अगर हम सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कितने होते हैं, दैट इज 4 टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, now let's start with the first biomacromolecule, that is an protein. लिपिड है, ऑब्वियसली वो एक पुल बनाता है, माइक्रो भी नहीं, मैक्रो तो नहीं होता है, माइक्रो होता है, लेकिन कई बार इट इज काउंटेड एज एन biomacromolecule because it is just because of found in the acid insoluble fraction. Okay, now let's start with the protein. As we know that अभी मैंने बोला कि प्रोटीन का जो मोनोमर होता है दैट इज एन अमीनो एसिड। प्रोटीन बना किससे होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। सो अमीनो एसिड है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं बाय मींस ऑफ ए स्पेसिफिक बॉन्ड। यहां पर देखिए प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, वो एक दूसरे के साथ यहां पर क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। Understood? By means of a specific bond and form a chain which is known as a polypeptide. Okay. So यहाँ पर देखिए जो अमीनो एसिड है which is a monomer of a protein एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं by means of a specific bond. तो यहाँ पर बॉन्ड की बात की है तो स्पेसिफिकली the bond which is found in the formation of a protein is known as a peptide bond. Understood? ये याद रखना है कि कौन सा बॉन्ड है वो स्पेसिफिकली प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है फ्रॉम द अमीनो एसिड। तो यहाँ पर देखिए अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड है। सो अमीनो एसिड विल join together by means of a peptide bond and form the structure which is known as a polypeptide। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो अगर कहीं पर भी पॉलीपेप्टाइड आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब ही क्या होता है? प्रोटीन। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर देखिए अमीनो एसिड which is the monomer of a protein joined together by means of a specific bond which is known as a peptide bond and form the chain which is known as a polypeptide or it is also known as a protein. Okay, now how this peptide bond is formed? अमीनो एसिड के बीच में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म होता है? We know the structure of an अमीनो एसिड। हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी पता है कि एक तरफ क्या होता है NH2 ग्रुप यानी कि अमीनो ग्रुप होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तीसरा जो बॉन्ड है उसके पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और लास्ट जो फोर्थ बॉन्ड है इसके पास क्या होगा? दैट इज R ग्रुप। R group may vary from one amino acid to another amino acid. Understood? अलग-अलग अमीनो एसिड में अलग-अलग होंगे ये R group। बाकी के जो तीनों ग्रुप है वो सेम है। So this is our first amino acid। अब यहाँ पर देखिए हम अपना दूसरा अमीनो एसिड है वो ले लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया? दूसरा अमीनो एसिड ले लिया। तो ये जो दो अमीनो एसिड ड्यूरिंग ए प्रोटीन फॉर्मेशन, जब प्रोटीन फॉर्म होगा तो ये दो अमीनो एसिड के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर स्पेसिफिकली कौन से जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? ओके, रिमेंबर हियर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ए फर्स्ट अमीनो एसिड and amino group of a second amino acid. Carboxylic group of a first amino acid and amino group of the next amino acid will participating in the formation of a bond. Understood? यहाँ पर bond formation हो जाएगा। Understood? इस तरह से bond formation होगा। तो ये जो bond form हुआ है, this bond is known as the peptide bond. तो इस तरह से एक अमीनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लाइन में अमीनो एसिड वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे
कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप, उस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता जाएगा। अंडरस्टूड? बट वो कितनी भी लंबी चेन फॉर्म होती है, कितनी भी यहाँ पर लंबी चेन फॉर्म हो रही है, सो कितनी भी लंबी चेन फॉर्म हो पॉलीपेप्टाइड की या तो प्रोटीन की, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा लेफ्ट साइड, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप है वो फ्री होगा। अंडरस्टूड? उसका जो NH2 ग्रुप है वो फ्री है, और जो लास्ट अमाइनो एसिड होता है उसका कौन सा ग्रुप है वो फ्री होता है, दैट इज COOH ग्रुप। अंडरस्टूड? सो ऑलवेज कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो या तो प्रोटीन हो, सपोज दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन, यही है, उसका जो लेफ्ट एंड होता है व्हिच इज नोन एज एन एन टर्मिनल, और जो राइट एंड होता है व्हिच इज नोन एज एन सी टर्मिनल। एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल क्यों नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड अमाइनो ग्रुप फ्री है, ये NH2, अंडरस्टूड? सो एन टर्मिनल ये N से आया है, और जो सी टर्मिनल है यहाँ पर राइट साइड में लास्ट अमाइनो एसिड जो होता है उसका COOH ग्रुप फ्री होता है, और इसलिए यहाँ पर इसको सी टर्मिनल नाम दिया है। सो ऑलवेज पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन इज हैविंग a two end N terminal as well as C terminal. Understood? एक बार ध्यान में रखिए यहाँ पे। ओके, now what is the distance between the two polypeptide chain? दो, सपोज यहाँ पर देखिए अमाइनो एसिड है, सपोज तो ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, नॉट पॉलीपेप्टाइड, दो पेप्टाइड एडजेसेंट पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 0.35 नैनोमीटर। Remember this, the distance between two adjacent peptide bond, okay, जो नजदीक वाले पेप्टाइड बॉन्ड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.35 नैनोमीटर। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज अबाउट एन वी कैन से प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड से बना है, बीच में बॉन्ड का सा फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्म होगा, और दो नियर बाय पेप्टाइड बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 0.35 नैनोमीटर। Understood? Always, whatever the protein or polypeptide chain is formed, they are having a two end. One is an N terminal and another one is a C terminal. Okay? Now, as we know that this protein is made up of an amino acid. बना किससे होता है प्रोटीन? अमाइनो एसिड से बना होता है। हमने जब माइक्रोमोलेक्यूल्स यानी कि अमाइनो एसिड की स्टडी की थी तब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड को पढ़ा है। Understood? Amino acids are classified into the four groups, that is an acidic, basic, neutral as well as aromatic amino acids. Understood? Here also two types of amino acids are given, that is on the basis of an utility by our body. हमारी बॉडी है अमाइनो एसिड्स को कैसे यूटिलाइज करती है, अंदर से ही यूटिलाइज कर अंदर से ही फॉर्म होता है या तो उसको बाहर से लेना पड़ता है, उसके आधार पर अमाइनो एसिड्स है वो जनरली दो भाग में डिवाइडेड है on the basis of an utility, ये याद रखना। एसेंशियल अमाइनो एसिड एज वेल एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये दो टर्म जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड कैसे अमाइनो एसिड को बोलेंगे एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को किस तरह के अमाइनो एसिड बोलेंगे। जनरली एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो कौन से अमाइनो एसिड होंगे व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अंडरस्टूड? इसलिए हमें उसकी जरूरत होती है डाइट में। अंडरस्टूड? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि जिसकी जरूरत है उसको बोलेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। 20 अमाइनो एसिड है तो सभी अमाइनो एसिड की हमें जरूरत तो है। अंडरस्टूड? लेकिन ऐसा होता है कि कई अमाइनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है और कई अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। So the amino acid which is not synthesized by our body, it can be, we can say, take from the outside. It should be present in our diet. वो हमें बाहर से लेना जरूरी है। Understood? तो जो अमीनो एसिड हमें बाहर से लेना जरूरी है डाइट में होने ही चाहिए,
जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, वैसे अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे हम? एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलेंगे। ओके, एसेंशियल अमाइनो एसिड वो जनरली 8 होते हैं। जनरली कई बार आपको 10 भी दिखाई देंगे, कई बुक में आपने देखा होगा कि 10 अमाइनो एसिड है which are counted as an essential, लेकिन among that the 8 amino acid are strictly essential। और 8 अमाइनो एसिड वो जनरली कौन से हैं? दैट इज फिनाइलएलनिन, देन मेथिओनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, threonine and tryptophan। Okay, so these are the 8 amino acids which should be present in our diet। अंडरस्टूड? हमारे डाइट में होना जरूरी है, उसको हम बाहर से लेंगे, क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल, बिकॉज़ इट इज एसेंशियल इन आवर डाइट। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी में उसकी जरूरत नहीं होती, उसकी जरूरत तो होती ही है, लेकिन हमें उसकी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी ही ये अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करता है, इसलिए हमें उसकी जरूरत बाहर से नहीं पड़ती है, डाइट में जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये जो अमाइनो एसिड है वो जनरली कौन से हैं? एलानिन है, एस्पार्जिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिन है, ग्लूटामिक एसिड है, सेरीन है, सिस्टीन है, प्रोलीन। Understood? So these are 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 16। ओके, कौन सा बच गया भाई? हाँ, थायरोसिन बच गया। So these are the 10 amino acid which is synthesized by our body। हमारी बॉडी ऑलरेडी सिंथेसाइज करती है, इसलिए हमें बाहर से लेने की जरूरत उसको नहीं है, डाइट में होना जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड? और होते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये जो एसेंशियल है ये तो 8 ही है, नॉन एसेंशियल है वो 10 है, तो टोटल हो गए 18। तो दो अमाइनो एसिड का क्या होगा? जनरली अनदर class is also given in some book, that is semi essential। आपकी बुक में ये जो डाइट है सेमी एसेंशियल का वो नहीं दिया है, लेकिन कई बार कई बुक में सेमी एसेंशियल भी दिया होता है। सेमी एसेंशियल का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज तो होते हैं बट दे आर स्लो टू बी प्रोड्यूस्ड, बहुत ही स्लो होते हैं। अंडरस्टूड? प्रोड्यूस तो होते हैं बहुत, लेकिन बहुत ही धीरे प्रोड्यूस होते हैं। अंडरस्टूड? तो इसलिए हम अगर बाहर से लेंगे तो अच्छा है, नहीं भी लेंगे तो भी धीरे हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर ही लेगी। So the example of semi-essential amino acid is histidine and arginine। Sometimes histidine and arginine we can say they are counted as an essential also, because our body is slow to be produce it, बहुत ही धीरे इसको प्रोड्यूस करती है, इसलिए कई बार इसको हम essential amino acid में भी डाल देते हैं, but they are known as semi-essential। ये याद रखना है। Understood? क्योंकि ये सेमी एसेंशियल है, बॉडी प्रोड्यूस तो करती है लेकिन बहुत ही धीरे, दे आर स्लो टू बी प्रोड्यूस्ड। Understood what is an essential, non-essential as well as semi-essential amino acids? Okay. Now next one, that is the structure of protein, or we can say protein structure। So generally proteins, whenever the amino acid will join with each other, it will form the polypeptide chain। अंडरस्टूड? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। तो जो प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन इज आल्सो नोन एज ए प्रोटीन। जो प्रोटीन बनता है दे विल वी कैन से दे विल फॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अलग-अलग स्ट्रक्चर है वो बना लेता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्सिटी, द प्रोटीन स्ट्रक्चर आर ऑफ 4 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 4 तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होंगे, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी।
This classification or this type of a protein is totally based on the complexity of a protein. कितना सिंपल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और कितना कॉम्प्लेक्स है। अंडरस्टूड? सो जैसे जैसे प्राइमरी से लेकर के हम क्वाटरनरी तक जाएंगे, the complexity of a protein structure is going to increase. Primary structure is a very simple one. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जाएंगे इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। And last one that is in quaternary structure. It is a complex structure than all these three. Tertiary से भी ज़्यादा complex होगा than it is known as a quaternary structure. So this type of a protein is totally based on the complexity of a protein structure. Understood? So let's start with the first structure of a protein, that is a primary structure. So generally, as we know that the protein is made up of amino acid. तो amino acid वो एक दूसरे के साथ इस तरह से join होते जाएंगे और जो स्ट्रक्चर बना देगा which is known as polypeptide. Okay, simply the amino acid join with each other by means of a specific bond. हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। Understood? So peptide by means of a peptide bond, amino acid will join with each other and form a long chain of a polypeptide chain. एक polypeptide chain बना देगा. This polypeptide chain is known as a primary structure of a protein. ये वाला जो structure आप देख रहे हैं which is very linear, very simple, made up of only and only one bond which is known as a peptide bond. So जो protein का पहला है